Hello guys, Namaste. This is Sheetal here, and we are going to today discuss about the age of marriage because that is recently in news and it's a really hot topic. और क्यों अभी वो इशू आया है एज ऑफ कंसेंट, नॉट एज ऑफ कंसेंट एक्चुअली बट एज ऑफ मैरिज, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि कौन से एक्ट्स थे जो एज ऑफ मैरिज को डील करते हैं और कौन से इश्यूज है जो एज ऑफ कंसेंट को चेंज करने से अराइज हो सकते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट tell you initially that as promised last time, I am bringing you another episode of our law snippets, and today we'll not be discussing about any judgment. हम आज कोई judgment discuss नहीं करने वाले, rather we will discuss one important issue which is going to be decided by the Supreme Court in the first week of November. तो आज हम एक important issue discuss करेंगे, as मैंने पहले ही mention किया कि age of marriage के ऊपर, and today I'll be talking about the marriage age legislations in India. तो आपको ये तो पता है कि marriage is a very important social institution and it is regulated by various laws. We have Hindu Marriage Act, Christian Marriage Act, Parsi Marriage Act, and the Special Marriage Act, etc. All these acts, give legal sanctity to various parts of marriages. ये हर एक रिलीजन का अलग अलग मैरिज एक्ट है और वो एक लीगल सैंक्टिटी देता है आपके मैरिज को। एंड एज आई सेड अर्लियर, we will confine the discussion to the age of marriage for boys and girls. ठीक है, so as you know guys, in India the marriage age for boys is 21 and for girls it is 18 years, right? तो पता ही आपको लड़कों का एज 21 years होना चाहिए, लड़कियों का 18 years होना चाहिए। ठीक है, so before going into the detail of the development of the marriage age jurisprudence, I'll first tell you a story. So let me share a slide with you. Okay, give me a minute. Okay. Wait, share screen. And here's the presentation. Okay. And share. Perfect. So the topic is different ages for marriages of men and women perpetuate gender stereotypes. हम देखेंगे कि कैसे gender stereotypes इसकी वजह से अराइज होंगे, क्यों, मतलब क्या क्या हो सकता है। और जेंडर स्टीरियोटाइप्स मतलब दोनों में जेंडर डिस्पैरिटी होना, मतलब दोनों को जेंडर इक्वालिटी नहीं होना, मतलब कुछ लड़कों के लिए अलग है तो लड़कियों के लिए अलग है। ठीक है, सो okay, let's move on to the next slide. Okay, we'll not go into the issues that has to be decided because Supreme Court is going to decide that. So I have just mentioned it, but it is not really required to go into it. But yes, this is something very interesting that we should know about. A brief history of age of marriage, right? So see, you see that lady in the slide, right? And does anybody know who is she? Guess कर सकते हो आप थोड़ा सा? वैसे भी मैंने वहाँ लिख ही दिया है, रुक्माबाई। Anyway, she's Rukmabai. She's the second Indian woman in British India to get a degree in medicine and also practice medicine. ठीक है? So she's widely held as the originator of feminist movement in India. तो उससे काफी सारी जो feminist लोग हैं, feminist philosophers हैं, वो they praise her a lot. And she actually started the debate of age of consent, which gradually developed the age of marriage jurisprudence in India, जिसकी वजह से काफी debates start हुए age of consent के ऊपर and marriage jurisprudence के ऊपर। ठीक है, so रुक्माबाई was married to दादाजी भिकाजी at an earlier age of 11. ठीक है, and at the time of marriage the age of दादाजी भिकाजी was 19 years. वो थी 11 साल की और दादाजी भिकाजी थे 19 years के। ठीक है, तो और उन दोनों का शादी हो गया। तो रुक्माबाई had entered into marriage at pre-puberty age. Pre-puberty age मतलब लड़की का जब मेंस्ट्रुएशन नहीं स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है प्री प्यूबर्टी एज। ठीक है, तो उसकी शादी हुई थी प्री प्यूबर्टी एज में एंड मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुआ था। कंज्यूमेशन नहीं हुआ था मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में नहीं था। एंड शी स्टेड एट द हाउस ऑफ हर पेरेंट्स ओनली, और वो अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी। Her stepfather was a renowned doctor and she had developed a lot of interest in the medicine. उसके जो स्टेप फादर थे वो एक डॉक्टर थे और उसको काफी सारा
मेडिसिन में इंटरेस्ट था, ठीक है, and she also got a degree in medicine as I've already mentioned. So Bikaji on the other hand was not a man of decent character. So character इतना अच्छा नहीं था उसके husband का, and he did not have much of education either. इतना qualified भी नहीं था, education नहीं था उसका. तो he had failed in many ventures और वो काफी सारे failures भी आए थे उसको जब वो कोई भी मतलब start करता था काम करने के लिए. So but he had a good idea that once Rukmabai came to his home, he would get a good amount of money in dowry. उसको लगा था कि मैं शादी तो कर लूंगा एंड शी बिलोंग्स टू गुड फैमिली, तो मुझे बहुत सारा डाउरी मिलेगा. और डाउरी कंसेप्ट इज स्टिल देयर इन इंडिया, बी इट अ डॉक्टर, बी इट एन इंजीनियर, बी इट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, डाउरी तो देना ही पड़ेगा, ठीक है. So after failing in all the avenues, after 11 years he wrote a letter to his father-in-law to send Rukmabai to his house. तो उसने सब कुछ ट्राई किया लेकिन पैसे कमा नहीं पाया. तो आफ्टर 11 इयर्स उसने उसके फादर इन लॉ को, मतलब उसके ससुर जी को एक लेटर भेजा कि रुक्माबाई को घर भेज दो. उसके लिए रुक्माबाई ने शी टोल्ड टू हर फादर, उसने फादर को बोला कि वंस दादाजी गेट्स हाउस एंड इनकम ही वुड सेंड रुक्माबाई टू हिज हाउस. अगर मेरा पति कमाता है, उसका खुद का घर होगा, तभी मैं उसके घर पे जाऊंगी, जैसे उसने अपने पापा को बोला. एंड आफ्टर गेटिंग दिस मैसेज, naturally Dadaji Bikaji was upset and he filed a case in the Bombay High Court for restitution of marriage. इसकी वजह से वो गुस्सा हो गया और उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज का फाइल कर दिया. रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लॉ. ये फैमिली लॉ का कॉन्सेप्ट है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. So the judge gave a very interesting judgment. आपको ये मतलब that was a really interesting judgment actually. And he held that the application was not restitution, rather institution of marriage rights. अब ऐसा क्यों बोला? Because the marriage was not yet consummated and hence there cannot be a restitution, rather an institution. अगर तुम्हारा मैरिज कंसुमेट नहीं हुआ है तो तुम कौन से रेस्टिट्यूशन फाइल कर रहे हो, कौन से रेस्टिट्यूशन राइट्स है तुम्हारे पास? अगर मैरिज कंसुमेट होता तो रेस्टिट्यूशन राइट्स को कोर्ट में फाइल करोगे ना, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैरिज कंसुमेट नहीं हुआ था. उसने बोला तो इसीलिए रेस्टिट्यूशन नहीं है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज राइट्स, ठीक है. तो हेंस ही कुड नॉट एक्सेप्ट दैट प्रेयर. तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज के प्रेयर को. एंड देयर वाज नो इंग्लिश अथॉरिटी ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हेंस ही कुड नॉट एक्सेप्ट दैट प्रेयर. एंड ही सेड दैट रुक्माबाई वाज मैरिड इन हेल्पलेस इन्फेंसी एंड हेंस कुड नॉट बी कंपेल्ड टू स्टार्ट मैरिज. उसने हेल्पलेस इन्फेंसी मतलब उसका एज कम था, 11 साल था, इसीलिए उसका मतलब मेंटल कैपेसिटी नहीं है शादी करने का, और मतलब शी वाज अ चाइल्ड बेसिकली, तो शी शुड नॉट बी कंपेल्ड टू स्टार्ट अ मैरिज. And this judgment was widely criticized. Even Bal Gangadhar Tilak ने भी इस judgment को criticize किया. And the appellate court, reversed the decision of the High Court and then sent it back to the High Court to decide on the basis of Hindu marriage laws. ठीक है, so I'm just moving on to the next slide. Okay. And तो सेकेंड हियरिंग में क्या हुआ हाई कोर्ट में, उन्होंने बोला कि रुक्माबाई शुड गो टू दादाजी और फेस 6 months इम्प्रिजनमेंट. तो उन्होंने बोला कि या तो रुक्माबाई को वापस जाना चाहिए दादाजी के पास या उसे 6 month इम्प्रिजनमेंट डालना चाहिए. तो रुक्माबाई बोली कि she went on records to say that she would prefer imprisonment than going to दादाजी. मैं जेल चली जाऊंगी लेकिन मैं दादाजी के पास नहीं जाऊंगी. And she wrote a letter to Times newspaper about her travels and her story became a worldwide news. ठीक है, and it was rumored that when the records are not there, but it was rumored that Queen Victoria reversed the decision of Bombay High Court, though as I already said कि official record exist नहीं करते हैं. तो ये जो जजमेंट दिया था हाई कोर्ट ने उसको क्वीन विक्टोरिया ने रिवर्स कर दिया, ठीक है. एंड in any case Dadaji agreed for dissolution of marriage in lieu of hefty sum and the marriage got dissolved. ठीक है, तो now we'll see कि यहाँ पे क्या डिबेट चल रहा है. A brief history of marriage, right? A curious case of रुक्माबाई 1885 का था. तो डिबेट क्या है? The debate is basically law versus tradition. मतलब ट्रेडिशन लड़की को इसी एज में शादी करनी चाहिए, लड़की को अपने पति का सुनना चाहिए, और लड़का लड़की से एज में बड़ा होना चाहिए. So that is a tradition that we have been following for a long period of time. Second debate चल रहा था social reforms versus conservatism. सोशल रिफॉर्म्स मतलब जो भी उस टाइम सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, विडो मैरिज अलाउ किया जाए, सती की प्रथा बंद कर रहे थे, वर्सेस कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म मतलब वो लोग थे जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे. वो बोलते थे कि जो चलते आ रहा है ट्रेडिशन उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, हमें सोशल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए.
तो थर्ड डिबेट चल रहा था फेमिनिज्म वर्सेस पेट्रियार्की। फेमिनिज्म मतलब वो लोग होते हैं जो स्टॉन्च फॉलोअर होते हैं कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, जो भी टैबूज है लड़कियों के लिए, बी इट अबाउट द पीरियड और बी अबाउट एनीथिंग एनीथिंग, तो वो उसे अपोज करते हैं, वो टैबूज को निकालो बोलते हैं। तो वर्सेस पेट्रियार्की, पेट्रियार्की इज अगेन अबाउट कंजर्वेटिज्म, दोनों में सेम ही है। पेट्रियार्की भी वही बोलता है कि जो नॉर्म्स ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उनको कंजर्व किया जाए। तो अभी रुक्माबाई के दो क्रिटिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो तिलक ने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन जो है उसने उसको इम्प्योर कर दिया रुक्माबाई को, क्योंकि उसको मेडिसिन डिग्री मिला था, तो उसने इंग्लिश एजुकेशन क्या ले लिया, तो वो इम्प्योर हो गई, उसका थॉट ज्यादा ही एडवांस हो गया। तो कितना गलत बोला है देखो। एंड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन तिलक ने ये बोला कि हिंदुइज्म इज इन डेंजर। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम भी कैसे इंडिया में एक थॉट था, कैसे वो लोग सोचते थे उस टाइम। मैक्स मुलर हु इज अ रिनाउंड फिलोसोफर ऑफ जर्मन, उसने लेकिन बोला he supported her saying that education had enabled her to make informed choice। एजुकेशन की वजह से उसने एक इन्फॉर्म चॉइस लिया। अगर आप अभी भी देखोगे तो विलेजेस में आप जाओगे तो छोटी से छोटी लड़कियां शादी कर लेती है, अपनी मम्मी पापा का सुन लेती है। तो आजकल भी चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं, उन्हें पता नहीं क्या करना है, तो जो मम्मी पापा बोल रहे हैं कर लो। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिबेट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस critics, the way it basically paved a way for the enactment of age of consent act 1891, and this act basically changed the age of consent from 10 to 12 years across British India। अभी आपको एक, I'm just giving you food for thought, they're talking about age of consent, they're not talking about age of marriage। Age of marriage and age of consent are two different things, understand this fact। अगर आप एज ऑफ कंसेंट बना भी दे रहे हो 10 से 12, तो अगर लड़की की 5 साल में शादी भी हो रही है तो शादी तो हो रही है ना, आप उसका कंसेंट कहाँ ले रहे हो, बिना कंसेंट का शादी कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम तो उस लड़की को पता ही नहीं है, व्हेन शी इज 5 और 10 इयर्स, उसको पता ही नहीं कि व्हाट इज कंसेंट, राइट, शी विल नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो उसकी शादी तो आप कर ही रहे हो। तो दिस इज नॉट एज ऑफ मैरिज, दिस वाज एज ऑफ कंसेंट, मतलब मैं किसी चीज को हाँ बोलने का एज उन्होंने कंसेंट किया था, बट एज ऑफ मैरिज वाज नॉट डिफाइंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो everybody should know this, because judgment is anyway going to come। So so let me change to the next slide। Okay, so now see a brief history of age of marriage, a progression, कैसे progression हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट आपका आया था एज ऑफ कंसेंट 1891 में, उसमें आपका एज ऑफ कंसेंट को 10 to 12 इयर्स कर दिया, बट उन्होंने एज ऑफ मैरिज में कुछ नहीं बोला। फिर आया आपका चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, और उसे आप साडा एक्ट भी बोलते हो, 1929। उन्होंने मिनिमम मैरिज एज गर्ल्स के लिए 15 एंड बॉयज के लिए 18 रखा। फिर आया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1978, अमेंडमेंट था, ठीक है। उन्होंने बोला मिनिमम मैरिज एज फॉर गर्ल्स 18 होना चाहिए एंड बॉयज के लिए 21 होना चाहिए। फिर आपका आया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसकी उन्होंने बोला कि मिनिमम मैरिज एज फॉर गर्ल्स 18 होना चाहिए, बॉयज के लिए 21 होना चाहिए। तो आप देखिए कि ये ट्रेंड कैसा है। ये ट्रेंड में मैरिज इस ट्रेंड में ना एज ग्रुप को, उन्होंने मैरिज एज के ग्रुप को इंक्रीज तो किया है, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट क्रिएट्स जेंडर डिस्पैरिटी। एंड हाउ इट क्रिएट्स जेंडर डिस्पैरिटी इज, लड़कियों के लिए कम एज है, लड़कों के लिए ज्यादा एज है। समझ में आ रहा है ना जेंडर डिस्पैरिटी मतलब क्या है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, और लड़कों के लिए ज्यादा रख लो, लड़कियों के लिए कम रख लो। अभी इसके बारे में मैं आके बताऊंगी कि क्यों ये अनइक्वल है, अनफेयर है। एंड अभी ये डिबेट क्यों अभी फिर से न्यूज में आया, इतना सारा डिस्कशन हो रहा है ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक न्यूज प्लेटफॉर्म्स की इसके रिपोकेशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पेटिशनर ने क्या फाइल किया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट इंटेंडेड टू अमेंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, राइट। गवर्नमेंट ने बोला है, इसीलिए उन्होंने चेंज होगा बोल के उसके ऊपर पिटीशन फाइल किया। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो व्हाट आर द लीगल इश्यूज दैट आर एट हैंड, ठीक है। So petitioner is saying कि 3 articles will be violated, Article 15, Article 14 and Article 21। अभी Article 15 क्यों violation हो रहा है? You should know that there should not be a gender-based discrimination which is already given in Article 15, but यहाँ पे gender discrimination हो रहा है।
because it is causing a gender stereotyping. Gender stereotyping मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल मैनेजेबल एज है गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, जैसे मैंने अभी पहले बोला गर्ल्स के